So, hello everyone. This is Abhishek Singh, Assistant Professor at Engineering College, Banswara, Rajasthan. So, welcome to the course of Electrical Machine 1. So, last lecture we have discussed the armature reaction and the commutation process in DC generators. So, today we will discuss the characteristics of DC generators. So, before we start with the characteristics discussion, let's discuss the factor affecting the terminal voltage. Okay, so what are the factor affecting the terminal voltage of DC generator? Suppose we have equation here. This is our no load induced EMF minus armature reaction drop will first occur. Armature reaction drop, then there will be armature resistance drop, and if it is series generator then there will be a series field winding resistance drop also, minus there is a brush contact drop if specified. Okay, so we can combine this and write it as EG. EG means the voltage after subtracting the armature reaction drop minus IARA minus BCT. Okay. So if we draw the characteristic now, we will consider this armature reaction drop first, then if there is an armature resistance drop then we will consider that, and if there is an series field winding resistance drop then we will consider that also. Okay, so if we talk about characteristics, okay, so characteristic we have magnetizing characteristic, या no load characteristic, you can say no load. This is between EG या E naught versus field current IF. So this is your no load characteristic. When we talk about the load characteristic, load there is an internal characteristic, which is between EG and your IA, and another one is external characteristic, which is terminal voltage V versus your load current IL. ओके, सो ये अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए एग्जाम्स में है तो वो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक हमारे दो टाइप के, कई बार कंपटीशन में भी डायरेक्ट पूछते हैं कि इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक आपकी किसके बीच की है, ठीक है, तो ये सारे जवाब हम दे सकते हैं। अच्छा, चलिए आते हैं कैरेक्टरिस्टिक पे। तो फर्स्ट लेट्स डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड। जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में आपको पता है कि फील्ड वाइंडिंग को हम अलग से कनेक्शन दे रहे हैं, अलग से उसमें डीसी सप्लाई दे रहे हैं फील्ड के लिए, तो उसका फ्लक्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, उसको टर्मिनल वोल्टेज से उसके फ्लक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनाऊं, IA इज इक्वल टू IL ही होगा। आपने पहले देखा था सर्किट डायग्राम जो हमने बनाया था, इस टाइप का था, फील्ड को अलग से सप्लाई दी थी और ये आपका इधर आर्मेचर और इधर आपका लोड टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, इस टाइप का। तो कैसे रहेगा,
अगर हम ई का बनाए तो ये समझिए ये आपका सपोज ई नॉट अगर था, ठीक है, तो आफ्टर द आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप दिस विल बी योर ई जी, ओके, एंड देन if there is a resistance drop, armature resistance drop will be there also, so the final you will get your V like this, okay, simply because your IRA drop will be like this, okay. So finally with the current you will get your terminal voltage characteristic like this, okay, because at no load your EMF is E naught, then there will be a armature reaction drop and then your armature resistance drop and your characteristic will be drooping like this, okay. Now if we talk about the self excited shunt generator, self excited shunt generator. So what will happen in shunt generator, okay, let's draw the diagram that we have discussed earlier also. This is your this is your terminal voltage V and this is RSH, it is field current here, and this will be armature current, this is your load current, okay. The field here also is is approximately constant, okay, we have discussed earlier. So here what will happen, so here if we draw the characteristic, let's say IL or IA. So first we have discussed the voltage build-up concept in self-excited generators. So first, before we load this, the characteristic will be like, if you draw it here, you know, you'll get the characteristic like this. If you vary your field current, starting characteristic of shunt generator, here you will get your E naught, no load induced EMF, okay. This we have discussed earlier. Now if you load your shunt generator, then what will happen, then it should be like this, E naught, but first the armature reaction thing will be there and you will get your EG, okay. Next what will happen, the drop IARA means EG minus IARA drop, then you will get your terminal voltage V, okay. So if the terminal voltage is reducing with the load, if we are drawing it, it will be a drooping characteristic like this. This is your terminal voltage V. If it is reducing with the load, then what will happen here, if your V is reducing, means what, this your field current will be what, field current here will be V by RSH. So if your V is reducing, it means your field current also reducing, okay. And if your field current is reducing, that implies that your flux, field flux FSH will also reduce, and if your flux will reduce, then your induced EMF will also reduce, okay. And if your induced EMF will reduce, then again your terminal voltage will reduce further. Then it will be an iterative process, okay. So if you increase your load or your load current, terminal current, then there will be a iterative decrease in terminal voltage like this. So we have to operate this. So if we increase current, it will at a particular point, at a particular current, it will short circuit. Finally the voltage will decrease iteratively and it will become 0 and it will be short circuit. So there is some breakdown point and there is some breakdown current, so we have to operate below this point only.
and after this point it will short circuit. Okay, so this is the characteristic of your shunt generator. You have to remember what is happening here with the drop in terminal voltage. With the drop in terminal voltage, your field current also decrease, and then your field will decrease, then your EMF induced will decrease, and then in turn again your terminal voltage will decrease iteratively. Okay, fine. So let's discuss. Okay, let's discuss the application of these generator here only, because here we have characteristics. So according to the characteristic we can discuss their applications also. So application of this separately excited generator. Here we have to use a separate DC generator, means separate DC source also. So it is not conventionally used in our conventional power supply. Okay, conventional power generator. So this is exclusively used in aircraft, for DC supply in aircraft, ships, and some experimental setups. Experimental setup. Okay, this shunt generator, here the field flux is almost constant, so this is used in some small rating power supply. Small rating, because drop is there, we'll use some small rating power supply, and it is exclusively used in battery charging. This is very important. This you will asked in your competitions also. This shunt generator is exclusively used in battery charging. Okay, so next discuss करते हैं for series generator. Okay, अब series generator की बात करें अगर, ओके, तो सीरीज जनरेटर का कैसा था हमारा कि फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड विद द आर्मेचर. ठीक है, यहाँ आपका टर्मिनल वोल्टेज हो गया, दिस इज़ योर IA. ओके, तो यहाँ क्या होगा, इफ यू ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक हेयर, दिस इज IA, दिस इज, ये आइडियली हमारा इंड्यूस्ड EMF नो लोड होना चाहिए. और उसके बाद इसमें आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप तो होगा ही आपका. सपोज हियर वी गेट EG. उसके बाद IaRa ड्रॉप भी होनी चाहिए. फिर जैसे जैसे लोड करंट बढ़ेगी आपकी, IaRa ड्रॉप बढ़ना चाहिए था, टर्मिनल वोल्टेज रिड्यूस होना चाहिए था. बट जैसे जैसे आप यहाँ लोड करंट बढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये सेम लोड करंट आपके दिस RSC फील्ड वाइंडिंग में से भी होके जा रही है. तो इससे क्या हो रहा है, जब फील्ड वाइंडिंग में से सेम करंट होके जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपका जैसे जैसे आप IA इंक्रीज़ करेंगे, आपकी फील्ड फ्लक्स भी साथ साथ इंक्रीज़ हो जाएगी. और जैसे ही फील्ड फ्लक्स इंक्रीज़ होगी, वैसे ही आपका इंड्यूस्ड EMF अगेन इंक्रीज़ होगा. ठीक है, तो होना तो चाहिए था करंट के साथ आपका टर्मिनल वोल्टेज में ड्रॉप, बट चूँकि सेम करंट आपके फील्ड वाइंडिंग से भी जा रही है, तो उसकी वजह से आपका फ्लक्स बढ़ गया और EMF इंड्यूस्ड अगेन बढ़ गया, और ये प्रोसेस फिर आपका चलता रहेगा इटरेटिवली. तो जो आपका ड्रॉप हुआ उसके कंपैरिजन में ये जो आपका वोल्टेज राइज है, ये बहुत ज़्यादा है. इसलिए आपके इस सीरीज़ जनरेटर में हमारा प्लॉट ऐसा ना हो के जो हमने बनाया, कैसा होगा, ये हमें मिलेगी यहाँ पे एक इंक्रीजिंग कैरेक्टरिस्टिक. तो सीरीज जनरेटर का आपकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो होगी इंक्रीजिंग. ठीक है, समझ गए. तो अब इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक है, तो कैसा एप्लीकेशन हमें काम में आएगा. तो इसलिए अब ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है तो इसको हम जनरल कन्वेंशनल अपने सप्लाई में यूज़ नहीं कर सकते. तो फिर हम कहाँ यूज़ करेंगे, हम इसको यूज़ करते हैं एज अ बूस्टर इन DC डिस्ट्रीब्यूशन.
ओके। तो ये इसका स्पेसिफिक एप्लीकेशन है जहाँ पे हमारा डीसी जनरेटर लॉन्ग फीडर्स कनेक्टेड हो, तो वहाँ हम डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में इस एज अ बूस्टर यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर देखते हैं कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर में आपको पता है, अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, पहले भी बनाया था, हियर वी हैव बोथ सीरीज फील्ड वाइंडिंग एंड शंट फील्ड वाइंडिंग। ओके, here will be your terminal voltage will be here RSE and RSH। तो यहाँ क्या होगा, वोल्टेज में ड्रॉप तो होगा ही, बट यहाँ हमारे पास एक सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग है। वहाँ अगर हम रेजिस्टेंस लगा के इसको वेरिएबल करें, इसमें सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को हम अगर वेरिएबल कर दें, तो इससे क्या हो सकता है कि हम जो वोल्टेज चाहिए इंड्यूस में वो भी ले सकते हैं। और चूँकि इस सीरीज़ वाइंडिंग का बूस्टर वाला कॉन्सेप्ट है, तो हम उसमें अपने जो रेटेड है उससे ज़्यादा भी वोल्टेज ले सकते हैं, और चाहे तो उससे कम भी वोल्टेज मिल सकता है हमें। इसी को हम बोलते हैं कंपाउंडिंग बेसिकली। ठीक है, तो इसमें सीरीज़ रेजिस्टेंस वेरी करके इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये हमारा नो लोड सपोज इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो इसमें हमें ज़्यादा भी मिल सकता है, सेम उतना भी मिल सकता है, और उससे कम भी मिल सकता है अगर हम सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग जो अपना उसका रेजिस्टेंस वेरी करें। ठीक है, तो ये जो हम ज़्यादा मिलता है इसको हम बोलते हैं कि ओवर कंपाउंडेड, इसको ओवर कंपाउंडिंग हो गया, और इसको हम बोलते हैं लेवल कंपाउंडिंग या फिर फ्लैट कंपाउंडिंग। ठीक है, और ये जो है इसको हम बोलेंगे अंडर कंपाउंडिंग। ठीक है, तो इस वजह से देखेंगे आप कि वाइड रेंज ऑफ हमें इसमें ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज हम मिल सकता है। इसकी वजह से ये जो जो जनरेटर है ये हमारा एकदम कन्वेंशनल हाई रेटेड पावर सप्लाई के लिए, हाई रेटिंग कन्वेंशनल पावर सप्लाई में इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये कंपाउंड जनरेटर जो है इसको हम अपने कन्वेंशनल पावर सप्लाई में हाई रेटिंग के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें वाइड रेंज ऑफ वोल्टेजेस मिल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आपका बात करेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड की। डिफरेंशियल पिछले बात की हमने क्यूमुलेटिव कंपाउंड में थी। अगर डिफरेंशियल कंपाउंड की बात करें तो आपको पता है इसमें हमारा जो फ्लक्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ जो आपको कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी, ये सपोज आपका इनवर्ट होना चाहिए था, वो आपको कुछ इस तरह की डिक्रीजिंग कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे चूँकि सब फ्लक्स आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, टर्मिनल वोल्टेज होगा, वो डिक्रीज़ होगा। तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं? कन्वेंशनल सप्लाई में पॉसिबल नहीं है, यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका बड़ा स्पेसिफिक सा एप्लीकेशन हमारा हो जाता है, कहाँ पे यूज़ करते हैं? आर्क वेल्डिंग में। ओके, क्यों? क्योंकि आर्क वेल्डिंग में वी नीड लो वोल्टेज एंड हाई करंट। We need high current at very low voltage. So for low voltage high current application, ठीक है, तो यहाँ हम इस डिफरेंशियल कंपाउंड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करें, ये वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक, लगभग सारे डीसी जनरेटर की हमने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की। और इसके बाद बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन की। तो वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें अगर, तो इट्स बेसिकली द राइज इन टर्मिनल वोल्टेज व्हेन
योर लोड इज सडनली थ्रोन ऑफ, ठीक है, तो इट्स अ राइज इन terminal voltage when your load is thrown off. ओके, तो फॉर्मूला अगर हम लिखें वोल्टेज रेगुलेशन का परसेंटेज में, तो इट विल बी E माइनस V डिवाइड बाई V, ठीक है। तो ये रेगुलेशन हम आइडियली चाहते हैं जीरो, क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन बिल्कुल नहीं चाहते हम। तो अब आपके जो जनरेटर आपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, उसमें डीसी सीरीज जनरेटर जो होगा आपका डिफरेंशियल जनरेटर, उसमें जहाँ पे हमें नेगेटिव मिलेगा, ये सप्लाई आपकी जहाँ भी नेगेटिव मिल जाएगी वहाँ पे हमारा जो है ये काम नहीं आएगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन मतलब उसका बेकार है, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन का सिंपल फार्मूला ये हम हर जगह यूज़ करेंगे, आगे ट्रांसफार्मर में भी पढ़ेंगे और सिंक्रोनस जनरेटर में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है आपका, वो होता है पैरेलल ऑपरेशन, ठीक है। पैरेलल ऑपरेशन के लिए सबसे पहला अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें हम, क्यों हम पैरेलल ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें हम दो या ज़्यादा, तो उससे अधिक जनरेटर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं बस बार से। तो पैरेलल ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट, तो इट विल टू इंक्रीज रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। सेकेंड, टू इंक्रीज efficiency at lightly loaded condition, ठीक है। थर्ड आपका हो सकता है, थर्ड ये हो सकता है कि एक्सपेंशन अगर हमें करना हो ग्रिड का, आगे अगर बढ़ने वाला है आपका लोड, तो हमारे लिए बैकअप रहेगा। तो एक्सपेंशन अगर आपको करना है तो उसके लिए ये पैरेलल ऑपरेशन हमारे लिए बेनिफिशियल है। फोर्थ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर, हमेशा आपके पास बैकअप रहेगा मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। तो ये सारे हमारे इसके बेनिफिट्स हैं पैरेलल ऑपरेशन के, ठीक है। इन सब के लिए हम पैरेलल ऑपरेशन करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव भी एक तरह से बोल सकते हैं आप। अच्छा, सबसे उसके बाद एक कंडीशन ये होगी कि पैरेलल ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो दो जनरेटर हैं, इनकमिंग जनरेटर भी है साथ में, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए टू ऑपरेट इन पैरेलल? तो कंडीशन टू ऑपरेट इन पैरेलल क्या होना चाहिए आपका? फर्स्ट कंडीशन कि आपका वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज जो है वो शुड बी सेम, terminal voltage should be same, and second, the polarity should be same, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज और पोलैरिटी आपकी सेम होनी चाहिए इनकमिंग जनरेटर की, अगर आप उसको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो सपोज अगर मैं एक जनरेटर ये हमारा है, ठीक है, और एक जनरेटर हम और इसके पैरेलल में लगाते हैं, ये कहीं ग्रिड से कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमको चेक करना है पहले। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर इस वोल्ट मीटर की रीडिंग हमारी 0 आएगी, तो इसका मतलब दोनों की पोलैरिटी और वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज सेम है, ठीक है। अदरवाइज़ ये दोनों में डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक का एक्साइटेशन या फिर उसका या फिर स्पीड जो है वेरी करके हम टर्मिनल वोल्टेज सेम करेंगे, ये वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन इन सबसे भी इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये है, ये कंडीशन जो भी हैं, कि
पैरेलल ऑपरेशन के लिए आपका जो जनरेटर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होनी चाहिए वो ड्रूपिंग होनी चाहिए। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि फॉर पैरेलल ऑपरेशन जनरेटर कैरेक्टरिस्टिक शुड बी ड्रूपिंग। ठीक है, क्यों देखते हैं। सपोज हमारे पास दो जनरेटर हैं तो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। एक की इक्वेशन हम लिख देते हैं कि E इज इक्वल टू V प्लस IARA, E1 इज इक्वल टू V प्लस IA1 RA1, E2 इज इक्वल टू V प्लस IA2 R2, इस तरह से कुछ है। ठीक है, तो आप देखेंगे करंट अगर लिखें हम IA1 तो हो जाएगा आपका E माइनस V बाई R, E1 माइनस V बाई R1, और IA2 हो जाएगा E2 माइनस V बाई R2। तो कुल मिला के जो आपकी करंट या लोड कैरिंग कैपेबिलिटी है वो प्रोपोर्शनल है आपके किसके, आपके इंड्यूस्ड EMF के। ठीक है, तो लोड कैपेबिलिटी जो है आपकी इंड्यूस्ड EMF के प्रोपोर्शनल है। ये चीज़ तो क्लियर है। तो यहाँ से अभी हम समझते हैं कि अगर ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक ना हो तो फिर हम उसको पैरेलल ऑपरेशन में क्यों नहीं यूज़ कर सकते, कैसे नहीं यूज़ कर सकते देखेंगे। सपोज हमारे पास एक DC जनरेटर है जो कि सीरीज जनरेटर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी राइजिंग, ड्रूपिंग नहीं थी। तो उससे क्या नुकसान हो रहा है। सीरीज जनरेटर का एग्जांपल लेते हैं। सीरीज जनरेटर में कैसा था, इस तरह से ब्रशेस हैं, सीरीज में फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपका लोड था। इसमें क्या दिक्कत आ रही थी, अब जैसे कि करंट बढ़ेगी, लोड करंट इंक्रीज होगी, तो कहीं ना कहीं टर्मिनल में वोल्टेज जो है ड्रॉप होना चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए। लेकिन जैसे ही टर्मिनल वोल्टेज आपका यहाँ पे ड्रॉप होगा, EMF इंड्यूस्ड आपका ये E2 है, तो जैसे ही कहीं ना कहीं एक ड्रॉप होगा, आपका ये E है जो है वो फ्लक्स जिसकी बात कर रहे थे हम, फ्लक्स बढ़ेगा क्योंकि करंट सेम IA इसमें से जा रही है। तो वोल्टेज तो ड्रॉप होगा, लेकिन उसकी वजह से जो हमने राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक बनाया कि फ्लक्स बढ़ रहा था, फ्लक्स की वजह से आपका EMF इंड्यूस्ड भी बढ़ रहा था। तो EMF इंड्यूस्ड जब बढ़ जा रहा है तो कहीं ना कहीं फिर से जो कि आपकी जो लोड कैरिंग कैपेबिलिटी है वो आपके EMF के प्रोपोर्शनल है, तो कहीं ना कहीं फिर से आपका जो करंट है वो अगेन बढ़ेगा। तो करंट बढ़ने की वजह से, लोड बढ़ने की वजह से आपका फ्लक्स बढ़ा, क्योंकि सेम करंट फील्ड वाइंडिंग से जा रही थी, तो आपका EMF बढ़ गया। और चूंकि EMF के प्रोपोर्शनल है लोड कैरिंग कैपेबिलिटी, तो फिर से आपका करंट बढ़ेगा। ये इटरेटिव प्रोसेस है, चलता रहेगा। तो इसका मतलब कि आपकी एक मशीन, एक जनरेटर हो जाएगा ओवरलोडेड और वो दूसरे को कर देगा अंडरलोडेड, अगर वो दो पैरेलल में ऑपरेट हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, योर वन जनरेटर विल बी overloaded and will make second one underloaded। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है कि एक जो है आपका जनरेटर ओवरलोडेड हो जाएगा, दूसरे को अंडरलोडेड कर देगा। तो अब सीरीज जनरेटर को हमको अगर पैरेलल में ऑपरेट कराना ही है तो क्या कुछ ऐसी रेमेडी है जो हम ले सकते हैं और उसको ऑपरेट करा सकते हैं। तो हाँ, एक ऑप्शन है हमारे पास। अगर हमको उसको पैरेलल में ऑपरेट कराना है, सपोज ये हमारे पास सीरीज जनरेटर है, ठीक है, एक और है। अगर हमें इन्हें पैरेलल में ऑपरेट कराना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक इक्वलाइज़र बार लगा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जैसे ही आपकी करंट इंक्रीज़ होगी, लोड बढ़ेगा, बढ़ती जाएगी, तो वो करंट यहाँ से भी बाईपास होगी। तो क्या होगा, दोनों में एक साथ करंट बढ़ेगी, तो दोनों लोड बढ़ेंगे, दोनों ओवरलोडेड होंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि एक ओवरलोडेड हो गया दूसरे को अंडरलोडेड कर दिया, तो एक साथ चलेंगे। तो अगर आप एक इक्वलाइज़र बार लगा दें,
तो हम जो है सीरीज जनरेटर को पैरेलल ऑपरेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। और बाकी शंट जनरेटर की बात करें और कंपाउंड की बात करें तो उन दोनों को हम पैरेलल ऑपरेशन में यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दे हैव अ ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो पैरेलल ऑपरेशन के लिए हमारा ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक होना जरूरी है। सीरीज जनरेटर का ड्रूपिंग नहीं था तो उससे क्या नुकसान था हमने डिस्कस किया, और फिर भी उसके बाद उसको पैरेलल ऑपरेशन कराना है तो हम इक्वलाइज़र बार इक्वलाइज़र रिंग यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, फिर वो करंट हमारी बाईपास हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका ओवरऑल पैरेलल ऑपरेशन, और आई थिंक हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया आपके डीसी जनरेटर में। सो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अवर डीसी मोटर पोर्शन। ओके, थैंक यू।